एक बार फिर से हम लोग इस क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं ब्रॉडली। वन इज कॉल्ड योर ओपन चेन कंपाउंड, अनदर इज कॉल्ड क्लोज चेन कंपाउंड. Open chain compounds are also called acyclic compound because they are not cyclic in nature. They are not in the form of closed chain, so acyclic. और ये क्लोज चेन होता है तो इसको हम लोग साइक्लिक भी बोल सकते हैं. इसका और भी कुछ नाम है. एसाइक्लिक के अलावा इसको कहा जाता है एलिफेटिक कंपाउंड, विच इज द मोस्ट कॉमन नेम. इसका वेल नोन एग्जांपल है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, देन स्ट्रेट चेन अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन वगैरह वगैरह जो हम लोग जस्ट कंप्लीट किए. साइक्लिक कंपाउंड दो पार्ट में क्लासिफाई होता है. वन इज कॉल्ड होमोसाइक्लिक, अनदर इज कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक. होमोसाइक्लिक means there only one type of elements are present, like only carbon is present. Excuse me. Suppose only carbon is present. Okay, so this is acyclic compound, homocyclic compound. Homocyclic further divided into two types. One is called alicyclic, another is called aromatic. Am I audible? Sir, yes, sir, you are audible, sir. Aromatic compound and alicyclic compound. We already did the nomenclature of alicyclic compounds. Their nomenclature is similar to that of aliphatic compound. Instead, they use a common term cyclo in front of them. Okay. Next is your aromatic compound. Yes, sir. Aromatic compound contain two types. One is called benzenoid, which contain benzene rings. Another is called non-benzenoid. They not contain benzene ring. So this is out of your syllabus, non-benzenoid, and this is heterocyclic is also out of your syllabus. So मैंने होमवर्क दिया था बेंजेनॉइड का पूरा नोमेनक्लेचर एंड आई वांट टू सी हाउ मच यू कैन डिड इट. इसको मैं अभी पूछूंगा. उससे पहले हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो करवा दूं मैं, दैट इज बेंजीन रिंग एंड इट्स नंबरिंग. सो हाउ बेंजीन रिंग लुक लाइक. इसको न्यूक्लियस भी कहते हैं समटाइम्स, न्यूक्लियस ऑफ बेंजीन रिंग. सो बेंजीन रिंग, बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है एवरीवन नोज, C6H6. इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कुछ इस तरीके से. फिर हमने पढ़ा है रेजोनेंस, तो हम लोग इसको इसके साथ साथ ऐसा फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, where double bonds or pi bonds are in the alternate positions. So this is first structure, this is second structure. Sir, it is also. And the resonance hybrid of these two structure can be represented. Yes, sir, it is represented with circle in middle. Yes, that is your resonance hybrid. Okay, so this is resonance hybrid. Okay, this is how benzene ring look likes. Just wait a minute. Sir, your screen has closed. I know, just wait a minute. Visible now? Yes, sir. So this is the benzene ring, and then the numbering is very important. Numbering कैसे करते हैं इसको? For simplicity, you can use any one of this. Okay, इसको 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 किसी को भी यूज कर सकते हो. Now इसका नंबरिंग कैसे करते हो? इसका नंबरिंग एज इट इज अ रेगुलर हेक्सागन, सो नंबरिंग आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो.
नॉट नेसेसरी इसी को आपको 1 Yes, पकड़ना, sir. you can start from anywhere. So one way is either your anti-clockwise numbering or you are going through anti-clockwise. So clockwise numbering में जाओगे तो होगा 1 2 3, this is 4, this is 5, this is 6, total 6 number of curve. Another way of Yes, writing sir. is anti-clockwise. So here you can write like this 1 2 3 4 5 and 6, किसी भी डायरेक्शन में हम लोग काउंट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें और एक बात याद रखो, जो 1 पोजीशन होता है मेन पोजीशन हम लोग उसको पकड़ेंगे जहां पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो और कोई फंक्शनल हो। सो नंबर 1 पोजीशन जो होता है वो किसके लिए होता है, यहाँ पे हमारा कोई फंक्शनल ग्रुप होगा या फिर कोई सब्स्टिट्यूएंट बैठा होगा। So this also follow the least substitution method, सबसे छोटा नंबर पे ही सब्स्टिट्यूशन को या फिर फंक्शनल ग्रुप को पुट करना। अगर 1 पे फंक्शनल ग्रुप बैठा हुआ है या सब्स्टिट्यूएंट बैठा हुआ है तो ये 6 और सेकेंड नंबर जो पोजीशन है इसको कहा जाता है ऑर्थो पोजीशन, याद रखोगे। Yes, sir. ऑर्थो पोजीशन। 5th number and 3rd number are called meta position. Always remember. Sir, first. Yes. First place is a. Yes, sir. Yes. First and fourth. P. First, fourth is called actually your para position. Okay, not first and fourth, because first वाले पे क्या होता है हमारा फंक्शनल ग्रुप बैठा रहता है, तो पैरा के लिए एक ही पोजीशन बचता है, ठीक है। मेन ग्रुप हमारा फर्स्ट पे बैठेगा, फोर्थ पे जो रहेगा वो होगा पैरा सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। बहुत सारे बुक में 1 और 4 दोनों लिखा है। 2 और 6 को भी ऑर्थो बोल सकते हैं ना, लिखा है मैंने। 2 and 6 is called ortho, 3 and 5 is called meta, see your screen, and 4 is called para. इसको इस टर्म्स को हम लोग यूज करेंगे थोड़ी देर बाद, इसीलिए इसको याद रखना। सर 1 और 2 को क्या बोलेंगे, 1 और 2 को? Why 1 and 2? 1 is for functional position, सेकेंड को कहेंगे ऑर्थो, 6 को भी कहेंगे ऑर्थो। Why 1 and 2? They are not in a pair, पेयर नहीं है। यहाँ पे मेरा फंक्शनल ग्रुप बैठेगा, सेकेंड पे जो बैठेगा उसको मैं बोलूंगा ऑर्थो, या फिर 6th पे बैठेगा तो मैं बोलूंगा ऑर्थो, क्योंकि ये सिमेट्रिक है। लुक, 2 इधर है 6 इधर है, यहाँ पे देखो 6 इधर है 2 इधर है, दे आर सिमेट्रिक पोजीशन। यस सर, समझ में दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड ऑर्थो। नेट में देखा था ना तो उसमें लिखा था कि पेयर वाइज होता है, इसीलिए मेरे को डाउट हो रहा था सर। नो नो नो, 3 and 5 are symmetric. Look, 3 and 5 interchangeable, that is why they are called meta, and 4 is not interchangeable, that is why it is only one position, which is called para. So this is the numbering of benzene ring. Next we come with the IUPAC name of some of your aromatic hydrocarbons, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी यहाँ लिख दिया है लास्ट क्लास में, तो इसको हम लोग देख सकते हैं। So look, this is simple. If only benzene ring is present, this is called benzene. Everyone knows this. इसमें कुछ भी अलग नहीं है। अब इसमें देखो फर्स्ट पोजीशन पे CH3 बैठ गया। अभी तक हमने पढ़ा था CH3 क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है या सब्स्टिट्यूएंट होता है? यस, स्वयं CH3 is a functional group or it is a substituent? Yes. क्लास करवा रहे, क्लास करा के फोन करते हैं। हाँ बोल। नहीं भाई, अभी जस्ट क्लास शुरू हुआ। अर्जेंट है क्या? 100 रुपये होगा 50 से। मैं ऑडिबल ना
यस सर। यस सर। सॉरी, सो मैं क्वेश्चन पूछ रहा था कि ये CH3 क्या है? इट इज अ सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप, सो इट इज अ सब्स्टिट्यूएंट। ओके, सो सब्स्टिट्यूएंट का नाम है मिथाइल, और ये कौन से पोजीशन पे बैठा है? देखो अभी हमने नंबरिंग किया 1 पे, तो इसका नाम हो जाएगा 1 मिथाइल, एंड देन दिस वन इज योर बेंजीन, 1 मिथाइल बेंजीन, दिस इज योर आईयूपैक नोमेनक्लेचर। लेकिन इस कंपाउंड का एक कॉमन नेम है जो कि हम लोग ओवरऑल योर स्टडी हम लोग यूज करेंगे, तो इसको याद रखना बहुत जरूरी है। ओनली CH3 इज प्रेजेंट, देन दिस कंपाउंड इज कॉल्ड टॉलुइल। याद रहेगा, if only CH3 present, then this compound is called toluene. Is it okay? यस सर। If अब नाउ देखो यहाँ पे 2 CH3 बेस्ट है, एक फर्स्ट पे एक सेकंड, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं 1 2, देन 2 CH3 के लिए डाई मिथाइल, देन बेंजीन। इस कंपाउंड को हम लोग और एक नाम देते हैं, कोई बता पाएगा क्या बोल सकते हैं इसको? और इसका और एक नाम होता है, इसको कहते हैं xylene. This is called यस सर, xylene. जाइलिन। Xylene, but in which position CH3 is present? सर CH3, ऑर्थो। yes, ये मेन पोजीशन पे बैठा है, इसके अलावा और कौन सा पोजीशन पे बैठा है? तो इफ यू सी इन द प्रीवियस स्लाइड, सेकेंड पोजीशन, एंड दिस इज कॉल्ड ऑर्थो पोजीशन, तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्थोजाइलिन, और ऑर्थो को शॉर्ट में सिर्फ O से लिखा जाता है, ऑर्थो को शॉर्ट में सिर्फ O लिख दिया जाता है, पैरा के लिए सर सिर्फ P लिख ऑर्थो दिया जाता है। डाइमिथाइल बेंजीन भी तो लिख सकते हैं ना? ऑर्थो डाइमिथाइल बेंजीन नहीं लिख सकते। रीजन है कि ऑर्थो मतलब यहाँ हो जा रहा है और ऑर्थो मतलब यहाँ हो जा रहा है, तुम फर्स्ट पोजीशन को स्पेसिफाई नहीं कर पा रहे। ठीक है, ओके सर। 1 2 dimethyl benzene is correct, but ortho dimethyl benzene is wrong. So this is called orthoxylene. Remember, second one, look, फर्स्ट पोजीशन पे है CH3 और थर्ड पोजीशन पे, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 1 3 डाइमिथाइल बेंजीन, एंड अनदर नेम इज पैराजाइलिन। इज इट पैराजाइलिन? अनंत? सर मेटाजाइलिन। Yes, it is third position and fifth position are called meta. So it is short में M लिख सकते हो. So this is metaxylene. Similarly, this one. Now this time it is 1 and 4 dimethyl benzene. This time it is called paraxylene. Okay. यस सर, पैराजाइलिन। Paraxylene. Now this one. First पे है, 3 पे और 5th पे है. So 1 3 5 trimethyl benzene. What is wrong with it? सिमिलरली यहाँ पे देखो, फर्स्ट पोजीशन पे 2 कार्बन है, तो इसको हम लोग इथाइल बेंजीन बोलेंगे और 1 इथाइल बेंजीन बोलेंगे। तो ये हम लोग का एक नॉर्मल सा नोमेनक्लेचर मैंने बताया, लेकिन यहाँ से लेट मी ऐड सम स्लाइड्स हियर, हम लोग इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। सर स्क्रीन हट गया। यस यस, जस्ट वेट अ मिनट। स्क्रीन? हाँ सर। यस सर। अब देखो, मैं यहाँ पे कुछ एडेड चीजें लगा रहा हूँ, ये तुम लोग का होमवर्क था एक्चुअली पूरा पढ़ना। सी हाउ मच यू स्टडी। CH3 CH2 CH3, इसका नाम बताओ, कौन बताएगा? तो पहला वाला कौन है? बोलो। तो 1 मिथाइल 2 इथाइल
बेंजीन। सर 2 इथाइल xylene। सर पहले वाले का नाम। व्हाई इट इज xylene? xylene सर क्यों इट हुआ? इज, सर xylene नहीं होगा सर, वो जो अपने पहले बताया था ना, टॉलिन होगा सर, क्योंकि CH3 प्रेजेंट है ना पूरे में, इसीलिए। नहीं नहीं नहीं, टॉलुइन तब होता है जब ये CH3 फैमिली होता है, लेकिन यहाँ पर दो है हमारा ग्रुप है सब्स्टिट्यूएंट, एक का नाम M से शुरू होता है मिथाइल, और एक का नाम E से शुरू होता है इथाइल। सिंपली सोचो, तो मेरा नंबरिंग तुम कहाँ से लोगे सोचो, पहले इथाइल आता है नाम वाइज, तो मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ, इसको फॉलो किया करो। यस सर, पहले तो तो मैं इथाइल इसको आएगा। लिखूंगा 1 इथाइल, ऐसा अनंत 2 गलत लिखा। मिथाइल 1 बेंजीन। मिथाइल तुम बोल रहे हो, 2 इथाइल बोल रहे हो, तो पहले 2 इथाइल लिखोगे क्योंकि ई पहले आता है, ठीक है? वैसे भी लिख सकते हो 2 इथाइल, हाँ सॉरी 1 इथाइल देन 2 मिथाइल बेंजीन। नाउ दिस इज योर नेम। सेकेंड वाला, इसका नाम, नाउ इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टास्क व्हेन, इसको कहा जाता है न्यूक्लियस। हमेशा एक बात याद रखना, केमिस्ट्री का टर्म जैसा होता है, ये जो बेंजीन रिंग है इसको कहा जाता है न्यूक्लियस ऑफ दिस कंपाउंड, और इसके साइड में जो भी चेन लगा रहेगा उसको हम लोग कहेंगे साइड चेन। सो हियर दिस ये जो पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं साइड चेन, रिमेंबर इसको कहा जाता है साइड चेन, और ये जो पोर्शन है इसको कहा जाता है न्यूक्लियस ऑफ द बेंजीन। अगर साइड चेन का नेम जो होता है वो बड़ा हो जाता है, मतलब बड़ा कार्बन चेन आ जाता है, या डबल बॉन्ड आ जाए, या कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाए, तो फिर बेंजीन को एज अ सब्स्टिट्यूएंट पकड़ लिया जाता है। याद रहेगा? सर डबल बॉन्ड आने से बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा? यस, ये हमारा है न्यूक्लियस। ये सारे जो थे ये न्यूक्लियस सब्स्टिट्यूएंट थे, क्योंकि देखो बेंजीन लास्ट में नाम आ रहा है, तो ये न्यूक्लियस में बैठे हुए हैं CH3, ये साइड चेन नहीं। लेकिन यहाँ पे ये साइड चेन बड़ा हो गया, डबल चेन रिंग आ गया, और न्यूक्लियस छोटा हो गया, तो इस केस में हम लोग को इस बेंजीन को एज्यूम करना पड़ेगा एज अ सब्स्टिट्यूएंट, और बेंजीन का एज अ सब्स्टिट्यूएंट नाम होता है फिनाइल। इसका नाम होता है फिनाइल। यस ठीक है, सर। अब नाम बताओ तुम लोग, मैंने सब्स्टिट्यूएंट का नाम भी बता दी, इट इज कॉल्ड फिनाइल। सो नाउ द नेम इज सर 4 सर फिनाइल फिना, ब्यूटानीन। 4 फिनाइल। नो सर Repeat. 4, सर 4 फिनाइल ब्यूटानीन। रिपीट फर्स्ट, क्या बोले? सर 4 फिनाइल ब्यूट 1 इन। इट्स करेक्ट। 4 पे है फिनाइल, एंड देन 4 कार्बन के लिए है ब्यूट, फर्स्ट वाले पे है डबल बॉन्ड। सर मतलब कि डबल चेन नहीं होगा तो साइड चेन नहीं होगा ये, और बेंजीन मेन हो जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? बट जनरली फिलहाल के लिए इतना समझ के रखो कि अगर जो साइड चेन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, तो फिनाइल को, बेंजीन रिंग को मुझे सब्स्टिट्यूएंट बनाना पड़ रहा है। सर तो डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे कौन ज्यादा डिस्टिंग्विश कैसे इंपॉर्टेंट है? करेंगे हम लोग, इसको हम लोग देखेंगे। ओके, यही यही हम लोग का एक्चुअली स्टडी है। जैसे कि एक अभी हमने देखा कि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, इसके अलावा क्या हो सकता है, लेट मी सी, इसके अलावा क्या हो सकता है? अब सोचो कि ये रहा मेरा बेंजीन और यहाँ पर है CH2OH। अब बताओ इसका नाम क्या है? Now this benzene ring not contain the functional group, rather the side chain content. Now it is very important to name it. So anyone? सर फिनॉल। No, this is not phenol. Phenol में benzene ring के ऊपर OH होता है। मिथॉल बेंजीन। मिथॉल, नॉट मिथॉल बोलते तो कुछ नहीं होता। सर मिथॉल फेनाइल। दिस इज योर लॉन्ग चेन। नाउ सिंपल सा बात है, यही मेरा लॉन्ग चेन है, एक कार्बन का लॉन्ग चेन जिसपे एक सब्स्टिट्यूएंट बैठा है फिनाइल,
तो पहले वाले पे ही बैठा है फिनाइल, और उसके बाद हम लोग लिखते हैं कार्बन चेन का नाम। कार्बन चेन का नाम है मिथ, सिंगल बॉन्ड है इसके पास इसलिए N, और इसके पास है OH, इसको कहते हैं ऑल। सो दिस इज वन फिनाइल मिथेनॉल, सिंपल। इसका और एक नाम होता है जो ज्यादा फेमस है। कॉमन नेम होता है क्या? यस, इसका एक काफी कॉमन नेम है जो ज्यादा फेमस है, उसको हम लोग थोड़ी देर में आने वाले हैं, और फिलहाल कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे उस बेसिस पर मैं बता रहा हूँ। हम लोग बहुत आसानी से देख के डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे जो अभी मैं पढ़ा रहा था, दैट इज बेंजीन रिंग एज अ सब्स्टिट्यूएंट। अभी हमने किया, अगर सिर्फ बेंजीन रिंग एज अ सब्स्टिट्यूएंट हो तो इसका नाम आता है फिनाइल। बेंजीन रिंग के साथ CH2 एज अ होल सब्स्टिट्यूएंट हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। ये कॉमन नेम में भी आता है और आयुपेक में नाम में भी आता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इसको हम लोग कहते हैं बेंजाइल, याद रखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर बेंजीन रिंग के ऊपर एक CH हो और इसके दो हाथ में कुछ और हो, तो इस पोर्शन को हम लोग कहते हैं बेंजल। और बेंजीन रिंग के ऊपर कार्बन हो और इसके तीनों हाथों में कुछ और हो, तो इस टाइप के सब्स्टिट्यूएंट को हम लोग कहते हैं बेंजो। एक बार फिर से देखो, बेंजीन रिंग के हाथ में कुछ भी नहीं है, देन इट इज फिनाइल। बेंजीन रिंग के पास एक कार्बन है जिसके हाथ में, दो हाथ में हाइड्रोजन है, एक हाथ में कुछ और है, देन इट इज बेंजाइल। ओके, याद तुम लोग कैसे करोगे, ट्रिक बना लो कोई। दो हाथ में हाइड्रोजन, सो बेंजाइल। एक हाइड्रोजन, then it is called benzyl, and no hydrogen, then it is called benzo. Now the namings are very become easy by using this kind of your, लिख लो इसको, जरा कंफ्यूज हो लोग तो जरा कॉपी में लिखो इसको, क्योंकि हम लोग अभी करेंगे इस पे बहुत सारा। सर इससे पहले वाला जो हम लोग ये थे उस हिसाब से तो वो बेंजाइल होना चाहिए। यस, वही तो मैंने कहा, उसका और एक नाम होगा, जरूरी नहीं एक ही नाम हो। मैंने क्या कहा, उसका एक नाम वो था, दूसरा नाम कुछ और होगा जो तुम बोल रहे हो इसको, राइट। हाँ, इसका दूसरा नाम क्या होगा। ये पोर्शन पूरा जो है वो मेरा बन गया, क्या कहते हैं इसको हम लोग, अभी अभी लिखा था हमने, क्या था, बेंजाइल। और ये OH ग्रुप किसका होता है, अल्कोहल। अल्कोहल, तो इसका नाम क्या हो गया, बेंजाइल अल्कोहल। दिस इज द कॉमन, as simple as that. So please write down this and then we go for some IUPAC nomenclature. Is it clear? यस सर। स्वयं हो गया? Okay. Now answer these simple questions like just we write down, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या, लास्ट वाला क्लोरोबेंजीन होगा ना? लास्ट वाला क्लोरोबेंजीन, इज इट? Anyone first one? फर्स्ट वन से आओ, नॉट लास्ट वन। अभी हमने किया था, इसको क्या कहते हैं इस सब्स्टिट्यूएंट पे, बेंजा। सर इसको तो सर बेंजाइल। अभी अभी तो यस लिखा, सर। इसलिए मैंने लिखने बोला बेंजाइल। दिस इज कॉल्ड वन बेंजाइल, बेंजाइल मेथनॉल। दिस इज बेंजाइल अल्कोहल, नथिंग एल्स। ये पूरा तो बेंजाइल हो गया, बचा क्या, OH। OH को हम लोग क्या कह सकते हैं, ऑल तो नहीं बोल सकते, अकेला रहेगा तो, दैट इज कॉल्ड अल्कोहल, दैट इज व्हाई द कॉमन नेम इज बेंजाइल अल्कोहल। देन दिस इज क्लोरोबेंजाइल। इट क्लोरोबेंजाइल और बेंजाइल क्लोराइड। Look, यस सर, this बेंजाइल part is क्लोराइड।
ये सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले आता है, सो ये हो गया बेंजाइल एंड देन क्लोराइड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बेंजीन रिंग के पास CH है और इसका 2 हाथ खाली है, जिस 2 हाथ में 2 क्लोरीन है, सो इट रिजेंबल विथ विच स्ट्रक्चर? बेंजल। It resemble with benzyl, right? With CH with 2 hands empty and they contain chlorine, so इसका नाम रिजेंबल हो रहा है बेंजल के साथ। तो ये वाला जो पोर्शन है ये तो बेंजल हो गया। सॉरी, सो दिस इज बेंजल एंड यहाँ क्या है? क्लोराइड है, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? बेंजल, और 2 क्लोरीन है ना, क्लोराइड। क्या कहेंगे? डाइक्लोराइड। क्लोराइड। नो, बेंजल डाई। डाइक्लोराइड। बहुत आसान है केमिस्ट्री का नोमेनक्लेचर, क्यों कंफ्यूज होते हो? देखो यहाँ पे ये था बेंजाइल सिंगल क्लोरीन तो क्लोराइड, ये है बेंजल 2 क्लोरीन है तो डाइक्लोराइड, और ये कैसा दिख रहा है? बेंजीन रिंग विथ 1 कार्बन एंड 3 hands are free and they contain 3 chlorine. It resemble with benzo. It resemble with benzo. Sir, Okay, so this is called sir, benzo trichloride. benzo trichloride. Yeah. तो देखो नाम ऐसे लिखा जाता है, ये सब नाम एग्जाम में आता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्या है, कितना डिफिकल्ट है, लेकिन डिफिकल्ट नहीं है। इसका जो की है ना ये याद रखना है। दिस इज कॉल्ड बेंजाइल, दिस इज कॉल्ड बेंजल एंड दिस इज कॉल्ड बेंजो। और इस टाइप का नोमेनक्लेचर को हम लोग कहते हैं साइड चेन नोमेनक्लेचर, क्योंकि ये साइड चेन का नाम हम लोग लिख रहे हैं और मेन न्यूक्लियस को हमने सब्स्टिट्यूएंट बना दिया। इज इट क्लियर नाउ? जस्ट एन इंट्रोडक्शन। ओके, जो अभी मैंने कहा वो यहाँ पे लिखा हुआ है, न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड क्या होता है एंड साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड क्या होता है। न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड मीन्स योर सब्स्टिट्यूट इज डायरेक्टली लिंक्ड inside the nucleus of the benzene ring, just like here 1 chlorobenzene, then 3 bromo 1 methyl benzene, या फिर इसको टॉलुइन कहते थे ना, याद करो, दिस पोर्शन इज कॉल्ड टॉलुइन, सो हम लोग 3 ब्रोमो टॉलुइन भी बोल सकते हैं, which is better name 3 ब्रोमो टॉलुइन। सर लेकिन ब्रोमो को तो 1 नाम देंगे क्योंकि वो B से स्टार्ट होता है ना, और वो तो C से स्टार्ट होता है। ब्रोमोबेंजीन जो होता है वो कोई कॉमन नेम नहीं है, लेकिन टॉलुइन जो है CH3 जब अटैच्ड होता है इसका कॉमन नेम होता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड टॉलुइन। ओके, अगर तुम नंबरिंग वाइज करोगे, इसको भी सब्स्टिट्यूएंट लोगे तो तुम लिखोगे 1 ब्रोमो 3 मिथाइल बेंजीन, दैट इज आल्सो करेक्ट नेम, बट दिस पोर्शन इज कॉल्ड टॉलुइन, राइट? इसको टॉलुइन कहते थे, और टॉलुइन में थर्ड पोर्शन पे सब्स्टिट्यूएंट है ब्रोमो, इसीलिए इसको 3 ब्रोमो टॉलुइन बोलो, या फिर इसको फिर मेटा ब्रोमो टॉलुइन बोलो। सर फिर से बोलिए, पर आपका आवाज कट रहा है। दिस इज कॉल्ड मेटा ब्रोमो टॉलुइन और 3 ब्रोमो टॉलुइन। ओके, Okay, sir. Last one is Yes, 1,2 dichlorobenzene. These all are your nuclear substituent. But side chain substituent क्या होगा? ये side का chain जो है वो मेरा main part बन जाएगा, और nucleus जो है वो substituent बन जाएगा, इसीलिए इसको कहते हैं side chain substituent, जो कि already हम लोग discuss कर चुके हैं। Yes, sir. उसके बाद हम लोग आ जाते हैं name of aromatic alcohols. So this is your लिंक, इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में सेंड कर रहा हूँ, टिल देन इसको स्क्रीनशॉट लो और तीनों का आंसर रेडी रखो। I send you a link in 2 minutes or 5 minutes.